Hi, in this lecture, we are going to study about the string formatting operations. So, I'm sure you are aware of that string is a data type, one of the data types in Python. Like we have number, string, list, tuple, dictionary, sets. So, in order to understand this concept properly, so generally we have learned like while studying numbers, suppose you assign a value to a variable which is a equal to 10, there is another variable b equal to 20, and if you directly want to print it, so this is how we see the output. Now suppose if I assign a text value to a variable, correct, and there is another value which I'll assign to another variable, right? So let's take another variable c and we'll assign an integer value to c. Now when you want to print a, so this will return you Sahil, right? Now if we want to do something like this, print a comma b comma c, so this will give you Sahil Agarwal 30 because a is Sahil, b is Agarwal, c is 30. But suppose if you want to do some you want to add some character in between Sahil and Agarwal, right? So what you are going to do here is, like, there is one way we can do it. Like many of you might have seen Excel. So generally when we assign a character in a function, so we write it in double inverted quotes. So we have seen it in Excel or maybe any other tool which you guys are familiar with. So this is a standard way of writing any character, which is basically in the double inverted quotes. So Sahil dash Agarwal, here I want to add again dash and then C. Now when I print this, this will give me error. Reason being, A is not a integer value here, right? So A is again a string. So it is important to declare it as a string here. So A has to be within str and then again strb. Now when you run this program, it will give you the just 1 second. Now it will give you the correct output. So this is how we generally write a value, or we assign a value to a variable and then we can print it. So this is the first case you have seen when we assigned a value, suppose a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30. So a is again within the str, b is again within str, c is within str. You might be having a question that if we can directly write a comma b comma c within this print statement, then why do we need to write it within str? The reason behind that is because we are using the characters here. So when we are using the character, so we have to make sure that we are again using this plus operator. So we have to assign it like what kind of type it is going to contain. Now coming to another example, a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30, correct? अब this is another way of writing things. इसमें ये क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा एक ही चीज को लिखने का दूसरा तरीका हो गया, परसेंटेज डी. मैं इसको ना थोड़ा सा और 1 मिनट स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, वैसे बहुत सारा लिखा होगा तो आपको अजीब लगेगा थोड़ा देख के. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज प्रिंट वैल्यू ऑफ ए. 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट. ठीक है, वैल्यू ऑफ ए कॉमा ए, ये तो समझ में आता है हमें. ये क्या करेगा अभी,
Yes. ये वैल्यू ऑफ ए, आप यहाँ पे कॉलम भी लगा सकते हैं, स्पेस, ये आपको ये दे देगा। ये तो सिंपल है बहुत ही, करेक्ट। अब इसी के अंदर मुझे पता है क्या करना है। इसी के अंदर ये चीज हमें समझ में आती है, राइट। मैंने कर दिया सपोज परसेंटेज डी यहाँ पे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे परसेंटेज डी कर रहा हूं, अब मैं इसको सपोज रन करता हूँ ये, तो इसने मुझे क्या दे दिया, द वैल्यू ऑफ ए कॉलन परसेंटेज डी, क्योंकि ये भी एक करेक्टर है, ये करेक्ट। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि ये परसेंटेज डी, इट शुड नॉट रीड इट एज अ करेक्टर, it should not read it as a character, it should rather take it as a value of whatever value we are assigning to a, that should go in percentage d। समझ रहे हैं ना, ये परसेंटेज डी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वट एवर द वैल्यू ऑफ ए इज देयर वो अपने आप परसेंटेज डी ले ले। तो उसके लिए आपने क्या देखा, कोई तरीका क्या है, यहाँ पे एक कॉमा की जगह बाहर क्या लगा दो, परसेंटेज लगा दो, बस ये समझ में आया। इसको ना लिख लो एक बार, नहीं तो भूल जाते हैं जनरली हम इस सिंटेक्स को, कि कभी भी अगर ये परसेंटेज डी को यूज करना है, सो वी विल बी यूजिंग दिस परसेंटेज सिंबल हियर। ये समझ में आया, ठीक है। अब सपोज क्या होता है कि आपको यहां पे लिखना है द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब आपको लिखना है वैल्यू ऑफ ए इज 10 कॉमा वैल्यू ऑफ बी इज कॉलन 20, करेक्ट। ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 2% परसेंटेज डी यूज किया, ठीक है। एक तो ये है, तो अब इसमें क्या हुआ, ये वाला परसेंट का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को यूज कर रखा है ए और बी को, ये देखेगा भाई अंदर जहां जहां पे उसे परसेंटेज डी उसके रिलेशन में मिलेगा, उसको वो वहां पे जाके वैल्यू उसकी प्रिंट कर देगा, करेक्ट। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो ऑर्डर क्या पिक करेगा, परसेंटेज टी जो पहला है वो इसमें जो पहला आप लिखोगे उसकी वैल्यू को लेगा, ये परसेंटेज टी जो बाद में है वो बाद वाले वेरिएबल की लेगा। अब जरूरी नहीं है परसेंटेज डी यहीं पे ही होता है, सपोज ये कहीं आप बीच में भी कहीं पे भी डाल सकते थे आप, दैट्स ऑल योर चॉइस। क्या आ गया ये, एक मिनट, मैंने सपोज यहाँ पे डाल दिया है, आपने देखा इसने क्या कर दिया, VAL, आपको आई थिंक समझ में आ गया कि एक डबल कोट्स के बीच में जो है परसेंटेज डी आप जहां पे भी डालोगे उसका बस काम ये है कि एक ही वैल्यू को यहाँ से पिक कर लेगा वो। अब आप ये वाले एग्जांपल को देखोगे, नाउ आई थिंक यू कैन रिलेट इट मोर इजियर वे। अब देखिए एबीसी की वैल्यू ये है 10 20 30, राइट। अब आपने परसेंटेज डी डाला तो आपको अब इजिली समझ में आ रहा होगा भाई ये एक ही वैल्यू उठा लेगा। अब चाहे बीच में कुछ भी लिखा हो, डैश लिखा हो, माइनस प्लस, मतलब आपको ये ऊपर से देख के समझ में आ गया कि अब आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेन जो वो काम था वो परसेंटेज डी भी लिखो और माइनस भी लिख दो, सपोज कुछ भी लिखिए आप, वो वैसा दे देगा उठा के। आई गेस क्लियर है इतना ये? Yes. All right. The same thing I am trying to do here. So you can see, अच्छा ये थोड़ा दूसरा चीज है। So now I am assigning a value which is a text Sahil equal to a variable which is a, and now again you want to print those variables a b c, right? अब ये क्या देगा, बाय द वे ये आपको एरर देगा अभी, तो आप दोनों को जो क्वेश्चन आ रहा था बिल्कुल ठीक है वो। द रीजन इज कि परसेंटेज डी जो आप लगाते हो ना, दिस इज बेसिकली फॉर द इंटीजर वैल्यू,
आपने ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग लिखा है आपने, अब हम टेक्स्ट नहीं बोलेंगे, अब हम स्ट्रिंग बोलेंगे हमेशा, राइट। तो आप इसके लिए परसेंटेज एस लगाओगे अगर आपको इसको भी प्रिंट करना है। So I hope you guys are done till here. Now moving on, we have another way of assigning a value to a variable and how we print it. So that's in a different way now. अब ABC को आपने क्या किया, साहिल 2030 कर दिया, ठीक है। अब आप अंदर परसेंटेज डी वाली चीज को ही हटा देते हो सपोज, राइट। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिए। इन करली ब्रेसेस का काम क्या होता है, दिस एक्ट लाइक अ परसेंटेज डी परसेंटेज एस, सेम वैसा ही काम करता है ये। अब आपने यहाँ पे परसेंटेज एस की जगह क्या लिख दिया, बस ये करली ब्रेसेस लिख दिया। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या उसका डेटा टाइप है, कैसा वो है, वो इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ये। एंड हाउ वी यूज इट, लाइक आपने देखा इसमें हम डॉट फॉर्मेट लिखते हैं जब भी हम ये करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं। वी डोंट यूज अ कॉमा हेयर अगेन, ये आप ना लिख लीजिए, बिकॉज ये आगे चल के बहुत कंफ्यूज करती हैं, सब चीजें याद नहीं रहती हैं। जब हम बाद में फंक्शंस वगैरह में पढ़ेंगे आपको बहुत कंफ्यूजन होगी तब कि क्या पढ़ा था हमने। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी नीड टू डिक्लेयर इट दिस वे, करेक्ट। सो जब भी आप डॉट फॉर्मेट यूज करते हो, आपका क्या होता है, डायनेमिक हो जाता है अंदर ये। व्हेन आई से डायनेमिक, सो हाउ डज इट वर्क, आप देखोगे ए की वैल्यू को जो है आप ये यहाँ भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट विल फॉलो दैट सेम ऑर्डर, कि भाई पहली जो होगी वो ए ही होगा, दूसरा जो होगा वो बी ही होगा, द नेक्स्ट विल बी सी ओनली। इट डजंट वर्क दैट वे। शेखर समझ में आया ये चीज? यस। इसको आप कैसे कर सकते हो, आइदर यू कैन असाइन द नंबर इनसाइड। अगर आपने कुछ भी नंबर असाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो पहले वाले को ए ले लेगा। बट अगर आप नंबरिंग असाइन कर रहे हो यहाँ पे 0 1 2, अभी क्या होगा, 0 मतलब आप इसको क्या कर दीजिए, इसे 0 1 2 किया, ये 0 क्या है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू ए की ले लेगा, 1 क्या करेगा बी की ले लेगा, 2 क्या करेगा सी की ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आप ये ऑर्डर को चेंज कर देते हो, सपोज यू मेक इट 1, दिस यू मेक इट 0 और लास्ट वाला 2 है, अब आउटपुट क्या आएगी, 20 Sahil 30, correct? So even now you can again do any sort of manipulation, आपको इसको 2 करना है, लास्ट वाले को 0 करना है, कुछ भी करिए आप, the output will change accordingly, correct? या फिर ऋतिक ने भी एक ऑप्शन सजेस्ट किया था हमें कि हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, सपोज इफ आई मेक इट सी एंड दिस आई मेक इट बी, करेक्ट। तो ये भी मुझे कुछ देगा, बट अगेन आई नीड टू बी केयरफुल कि 1 क्या है यहाँ पे, 1 इज योर सी, सी की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। एंड 2 क्या है, 2 इज योर बी, बी की वैल्यू क्या है 20, तो इसलिए 20 आया। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का हम अभी कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसमें आप ये सारी चीजें देखोगे कि क्या होता है, राइट।